اور اس لیکچر میں ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے پاور آف بورڈ، اپائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو، ڈیوٹیز آف ڈائریکٹرز، اور لاسٹ ون ہے ڈسکلوجر آف انٹرسٹ بائی ڈائریکٹرز۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کو ہی ڈسکس کیا تھا، لیکن یہ آج اس نوعیت کا دوسرا لیکچر ہے۔ بورڈ کی جو ڈیفینیشن ہے سیکشن 2 سب سیکشن 8 کے مطابق، اس میں یہ کہا گیا کہ بورڈ جو ہے اس سے مراد ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز آف دا کمپنی۔ اگر کہیں پہ بھی ورڈ بورڈ یوز ہوا ہے لا میں، تو بورڈ سے مراد بورڈ آف ڈائریکٹر ہوگا کمپنی کا۔ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پاورز کیا ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جہاں تک پاورز کی بات ہے، تو جو بھی کمپنی کا جو بزنس ہے اس کو مینج کرتا ہے بیسیکلی بورڈ، یعنی بورڈ آف ڈائریکٹر۔ اور بورڈ آف ڈائریکٹر کمپنی کے تمام ایڈمنسٹریٹو میٹرز، تمام مینجمنٹ کے ایشوز جو ہیں وہ ریزولو کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، کمپنی کو رن کرتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر۔ اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی ڈیوٹیز میں شامل ہوتا ہے کہ وہ شیئرز ایشو کر سکتے ہیں، ڈیبینچرز ایشو کر سکتے ہیں، وہ اماؤنٹ کو بورو کر سکتے ہیں، وہ فنڈز انویسٹ کر سکتے ہیں، لون دے سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹرز کو اتھورائز کر سکتے ہیں وہ کسی بھی کمپنی میں کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکیں۔ مثلا اگر کسی کمپنی نے سیل کرنی ہے، پرچیزنگ کرنی ہے، یا سپلائی آف گڈس کرنی ہے، یا سروسز رینڈر کرنی ہے، تو بورڈ آف ڈائریکٹر ان کو اتھورائز کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں۔ ان کو اتھورائز کرے گا بیسیکلی بورڈ آف ڈائریکٹر۔ اسی طرح فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کو اپروو کر سکتے ہیں۔ امپلائیز کے بونس جو ہیں اگر ان کو پے کرنا ہے بونس، اس کو اسکیم کو اپروو کر سکتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر۔ کیپٹل اور ایکسپینڈیچر انکر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بھی لیزنگ کانٹریکٹس کی انڈر ٹیکنگ ہے، اوبلیگیشنس ہیں، ان کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ انٹرم جو ڈیویڈنڈ ہے اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرم آئی تھنک آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی ڈیویڈنڈس وغیرہ کی، تو اس لیے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ادروائز یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ، وہ ایک لاجک جو ہے نا اس کی ڈیویڈنڈ کے ورڈ کی، ویسے تو کانسیپٹ کلیئر ہوگا، میں صرف اس کی لاجک کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈیویڈنڈ ورڈ جو ہے یہ دیکھیں ڈیوائڈ سے نکلا ہے۔ ڈیوائڈ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ کمپنی کا جو پروفٹ ہوتا ہے، کمپنی کے پروفٹ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے ان کے شیئر کے حساب سے۔ تو جو پروفٹ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان کو پے کر دیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈیویڈنڈ، وہ ان کا پروفٹ ہوتا ہے، تو وہ ڈیویڈنڈ کہلاتا ہے، اس کو ڈکلیئر کرے گا بورڈ آف ڈائریکٹر۔ اسی طرح جو اور بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے رائٹ آف کرنے کے معاملات ہیں، یا انوینٹریز کے معاملات ہیں، یا کوئی کمپرومائز کرنا کسی لا سوٹ میں، یعنی ایک کمپنی نے دوسری کمپنی پہ کوئی کیس فائل کر دیا، سوٹ فائل کر دیا، اور اس کو اگر کمپرومائز کرنا ہے تو کمپرومائز انڈیویجول کو ڈائریکٹر نہیں کر سکتا، کمپنی کا ممبر نہیں کر سکتا، کمپنی کا شیئر ہولڈر نہیں کر سکتا، ایون کمپنی کا چیف ایگزیکٹو بھی عام حالات میں نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں وہ تھرو ریزولوشن جو ہے وہ اس میں ڈکلیئر کریں کہ وہ فلاں کمپنی کے ساتھ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اختیار بھی بیسیکلی بورڈ آف ڈائریکٹر کا ہے۔ انڈیویجولی کوئی شخص بورڈ کی مرضی کے بغیر ان اختیارات کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا، یہ بات مائنڈ میں رہے۔ اسی طرح اگر کسی کمپنی کو ٹیک اوور کرنا ہے، تو کمپنی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو رضامندی ہے، ان کی جو کانسنٹ ہے، ان کے جو انسٹرکشنز ہیں، ان کو فالو کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کے بغیر جو ہے کوئی انڈیویجول ڈائریکٹر کمپنی کو ٹیک اوور نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے کمپنی کا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اسپیشل ریزولوشن نہ پاس کی جائے۔ کچھ تو جنرل فنکشنز ہے بورڈ کے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، بورڈ وہ فنکشنز پرفارم کر سکتا ہے، لیکن کچھ فنکشنز ایسے ہیں جن کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اسپیشل ریزولوشن پاس کی جائے، اس کے بعد یہ فنکشنز پرفارم کریں۔ لیکن اگر وہ وداؤٹ پاسنگ اسپیشل ریزولوشن اگر وہ ایسے اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ بیونڈ دی جورسڈکشن ہوگی، ان کے اختیارات سے تجاوز جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ وہ کون کون سے معاملات ہیں؟ مثلا وہ کوئی سیلنگ کا یا لیزنگ کا کام نہیں کر سکتے جو کہ کمپنی کے مینڈیٹ میں نہ آتا ہو۔
अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगे और होंगी, अंडरटेकिंग और साइजेबल पार्ट, उसको डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे। अंडरटेकिंग से मुराद है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी की नेट वर्थ से जो है वो 20% एक्सीड करती हो। कंपनी का जो नेट वर्थ है उससे जो 20% तक एक्सीड करेगी, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे अंडरटेकिंग। और साइजेबल पार्ट जो है, इससे मुराद है कि कंपनी के जो एसेट्स वगैरह हैं उनकी वैल्यू का 25%। तो ये जो मामला है अंडरटेकिंग से मतलब या साइजेबल पार्ट से मतलब, ये मामला तब ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इनको रिजॉल्व कर सकता है जब इनको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो है अथोराइज किया जाए। अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और इन्हीं से मतलब इन चीज़ों को वो एसेट्स को सेल नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता किसी भी सब्सिडरी कंपनी के जो एसेट्स हैं। यानी एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है और उसकी कंपनी सब्सिडरी जो उसकी सबॉर्डिनेट समझ लें आप कंपनी है, तो कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके एसेट्स को सेल नहीं कर सकता। इसी तरह किसी और मामलात में अगर देखा जाए तो वो रेमिट नहीं कर सकता, कोई रिलीफ नहीं दे सकता, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ एनी डेट आउटस्टैंडिंग ये नहीं दे सकता। यानी अगर कोई कंपनी कहती है, किसी कंपनी ने लोन लिया था एक कंपनी से और कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकता, अगर उनका टाइम एक फिक्स था तो उनको उसी टाइम में लोन वापस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम नहीं कर सकता। अब इसी तरह से जो कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको भी क्लोज नहीं कर सकता, ना ही कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाइंड अप कर सकता है। और अगर ये कंट्रावेंशन रहती है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा काम करता है तो उस सूरत में उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लेवल 2। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने अभी जो डिस्कस किए हैं कि ये फंक्शंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, सपोज करें इनकी जरूरत पेश आ जाती है, हम सपोज करते हैं कि कंपनी को वाइंड अप करने की जरूरत पेश आ सकती है, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग डेट है, तो जिस कंपनी से इन्होंने लेना है कर्जा, अगर वो टाइम मांग रहे हैं उनको टाइम देना पड़ जाता है, कोई ऐसे हालात जैसे कि कोविड-19 है और कुछ कंपनीज के अगर सपोज करें कि क्लेम करें कि हमारे इश्यूज जो है वो बने हुए, तो लिहाजा हम ये लोन आपको फलान डेट को पे कर सकते हैं, इस डेट को नहीं पे कर सकते। सपोज करते हैं कि अगर इन मामलों को रिजॉल्व करना है जो बोर्ड के अख्तियारात में नहीं है नॉर्मली, तो उस सूरत में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को कैसे इख्तियार देने पड़ेंगे कि वो ये फंक्शंस भी परफॉर्म कर सके या कंपनी को वाइंड अप भी कर सके। मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका आंसर कर सकते हैं जी? सर स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है ये आप काफ़ी करीब तरीन आपका आंसर है। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगी और जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, हमने ये नहीं कहा था कि टोटली वो कर ही नहीं सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फंक्शन परफॉर्म। इसमें इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ये काम नहीं कर सकते। ये देखें, स्पेशल रेजोल्यूशन जब तक पास नहीं की जाएगी तब तक ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उसमें मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें शेयर होल्डर्स हैं, उसमें मेंबर्स हैं और बोर्ड को अथोराइज कर देते हैं थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन कि हाँ जी ये काम बोर्ड कर सकता है, तो बोर्ड कर सकेगा, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शंस हैं। ये स्पेशल फंक्शन जो हैं थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन ही परफॉर्म हो सकते हैं। अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो तब बोर्ड के पास इख्तियार आ जाएगा और बोर्ड ये फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव। कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनको नॉर्मली जो है वो डील करता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है और वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं भी हो सकता है। अगर वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज उस बंदे को अपॉइंट किया जाएगा। कंपनी का जो डायरेक्टर है एक्चुअली वो कंपनी के ओनर्स में से ही होता है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे हों जो कि कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, तो आउटसाइडर पर्सन जो है उसको भी एज चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है, लॉ इसकी इजाज़त देता है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 की चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में
کہ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के तहत भी ऐसा बंदा जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। अब जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कंपनी फॉर्म होती है, तो कंपनी को फॉर्म करने के दौरान जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए जाते हैं शुरू में, उनको फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो अपने ओहदे तक बरकरार रह सकते हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो उसके बाद दोबारा जो है वो इलेक्शंस होंगे डायरेक्टर्स के, और मुख्तलिफ मामला डिस्कस होंगे। तो उसके बाद जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को भी जो अपॉइंट किया जाएगा। तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की जो ड्यूरेशन है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है। मेमोरेंडम में तो चीफ एग्जीक्यूटिव का नेम होगा, लेकिन जैसे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी उसके बाद उनको दोबारा अपॉइंट किया जाएगा। और जो अब नेक्स्ट है सेक्शन 187, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जैसे ही डायरेक्टर्स के इलेक्शन हो जाते हैं, डायरेक्टर्स के इलेक्शन के विद इन 14 डेज, यानी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं, डायरेक्टर्स सॉरी इलेक्ट हो गए हैं, और डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बाद अब चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो फिर अपॉइंट किया जाएगा। और चीफ एग्जीक्यूटिव की जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है उनके जॉब का या उनके सर्विस का, दैट इज 3 इयर्स। वो 3 साल के लिए जो है अपॉइंट किए जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। और अगर दरमियान में कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव की डेथ हो गई है, इनसेन हो गए हैं, या वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, या उन्होंने वो जो है वो कंपनी छोड़ दी है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो लॉ ये कहता है कि कैजुअल वैकेंसी की सूरत में किसी ने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर लिया जाएगा, या किसी डायरेक्टर अगर कोई है, डायरेक्टर कॉन्सेंट दे देता है, डायरेक्टर को एज चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जाएगा। और वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक नेक्स्ट डायरेक्टर के इलेक्शंस नहीं हो जाते, यानी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कॉल हो जाती। उसके बाद फिर नए चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और एक मरतबा चीफ एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट हो गए हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल मुकम्मल होने के बाद उनको दोबारा री अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि एक मरतबा चीफ एग्जीक्यूटिव 3 साल के लिए उसने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया तो दोबारा नहीं अपॉइंट हो सकता, वो दोबारा भी अपॉइंट हो सकता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो रिटायर हो जाते हैं, मसलन 3 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, वो रिटायर हो गए हैं, तो जब तक नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं होता तब तक वो अपने ओहदे पर जो है वो बरकरार रहेंगे। जैसे नया चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाएगा तो फिर उनकी चूंकि 3 इयर्स की ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई थी, तो लिहाजा वो फिर चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। ये है तो बहुत सिंपल सी बात, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो ये कि याद रखिएगा काइंडली, डायरेक्टर्स हमेशा इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट इलेक्शन में, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। अगरचे चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से भी हो सकते हैं, यानी कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया कि एक शख्स जो डायरेक्टर ए हैं उनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। वो कंपनी के डायरेक्टर तो हैं ही, प्लस वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाएंगे, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होंगे, ये याद रखिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा अपॉइंट होता है, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट होते हैं। ये इसमें एक डिफरेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट है सेक्शन 188, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको बेसिकली डिटरमिन करना होता है बोर्ड ने। बोर्ड जो है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटरमिन करेगा। और अगर कंपनी गवर्नमेंट की है, जिसमें गवर्नमेंट के 75% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको डिटरमिन करती है गवर्नमेंट खुद। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेगी। उस सूरत में फिर अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी, दैट इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वही इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसको फाइनल करते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव की जहाँ तक प्रिविलेजेस की बात है, राइट्स की बात है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव के वही राइट्स होंगे, वही प्रिविलेजेस होंगे जो किसी डायरेक्टर्स को हासिल होते हैं किसी कंपनी में। तो उनके सेम जो है प्रिविलेजेस राइट्स जो हैं वो रहेंगे।
अलबत्ता सेक्शन 189 ये कहता है कि ऐसे शख्स के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से जो है वो पाबंदी है जो कि इन एलिजिबल हैं या डिसक्वालिफाइड हैं। अब जहाँ तक इन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है और डिसक्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो इनएलिजिबल किन सूरतों में हो सकते हैं और डिसक्वालिफाइड जो है वो कमीशन किन सूरतों में कर सकता है अंडर सेक्शन 171 एंड 172 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। तो ये बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया अडॉप्ट करना होगा कि जो अनसाउंड माइंड है, जो इनसेन है, जो और इस तरह के जो हमने डिस्कस किए थे मामला, जो उनमें फॉल करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो चुका है और वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उनको फिर रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। सेक्शन 190 वो बताता है तरीकाकार, वो ये है कि बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेगा जिसमें जो मेजोरिटी होगी दैट वुड बी 3/4। यानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम सपोज करते हैं कि 8 डायरेक्टर्स हैं, तो 8 डायरेक्टर्स में से 6 डायरेक्टर्स का जो है ये अगर वो कहेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना है, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव किए जा सकते हैं। अगर उन 6 के बजाय 5 कहते हैं रिमूव करना है और 3 कहते हैं कि रिमूव नहीं करना चाहिए, तो उस सूरत में रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि 3/4 की जो मेजोरिटी है दैट इज कंपल्सरी। तो इस मेजोरिटी के बगैर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव नहीं किया जा सकता। मैं ये दोबारा बता देना चाहूँगा कि इसके रिमूवल का मतलब ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया और 6 माह के बाद ये पता चला कि ये कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिमूव कर देगा विद 3/4 मेजोरिटी। ठीक है, तो ये इसको रिमूव करने का मेथड है। नेक्स्ट जो है सब सेक्शन 2 में कहा गया कि जहाँ तक ऐसी कंपनीज का ताल्लुक है जो गवर्नमेंट की है, तो इसको जो है वो गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। ऐसी कंपनीज में जहाँ पे गवर्नमेंट का जो है 75% जो है वो वोटिंग राइट्स गवर्नमेंट के पास हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा ऐसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो रिमूव करते हैं। अब लास्ट में हमने देखना है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स की जहाँ तक है बात, तो कंपनीज के डायरेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी ये है कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उनको फॉलो करने के पाबंद होंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स इन गुड फेथ जो है कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मेमोरेंडम में डिस्कस किए गए होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के पाबंद होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का वादा किया होता है कि वो कंपनी के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेंगे, इसके इंटरेस्ट के लिए बेहतर तौर पे काम करेंगे, इन गुड फेथ वो काम करेंगे। और डायरेक्टर्स जो हैं विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। और पाबंदी है कि कोई भी डायरेक्टर जो है वो ऐसे मामलात में इन्वॉल्व नहीं होगा जो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, और कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे उनको अनड्यू गेन या अनड्यू एडवांटेज हासिल हो, यानी उनको नाजायज़ तौर पे फ़ायदा हो डायरेक्टर्स को और कंपनी को नाजायज़ तौर पे नुकसान हो। डायरेक्टर्स ऐसा काम नहीं कर सकते। इसी तरह सब सेक्शन 6 ये कहता है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी किसी और को असाइन नहीं कर सकते। जो डायरेक्टर इलेक्ट हुआ है वही अपने फंक्शन एज डायरेक्टर परफॉर्म कर सकता है, वो अपनी ड्यूटीज किसी और को जो है वो नहीं दे सकता। इसके अलावा सब सेक्शन 7 ये कहता है कि ये जो डायरेक्टर्स के फंक्शंस हैं जो मेमोरेंडम में बताए गए हैं या जो स्पेशली डिटेल में बताए जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, इसके अलावा कमीशन जो है मजीद जो है वो उनका रोल उनकी ड्यूटीज बता सकता है डायरेक्टर्स की कि वो परफॉर्म करेंगे। तो कमीशन के पास इख्तियार है कि वो फर्द जो है वो गाइड कर सकता है, वो बता सकता है कि डायरेक्टर्स जो है ये ड्यूटीज और रोल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ये जो भी डायरेक्टर्स के वाले से मामला डिस्कस किए हैं, अगर उसमें कोई वायलेशन करता है डायरेक्टर, वो ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं करता है, नेग्लिजेंस करता है या कंट्रावेंशन करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, तो उस सूरत में कमीशन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है, और कमीशन उनको जो है पेनल्टी भी प्रेस्क्राइब कर सकता है कि डायरेक्टर्स को जो है वो ये पेनल्टी हो सकती है। और जनरली अगर देखा जाए तो अगर कोई डायरेक्टर कंट्रावीन करता है ऊपर जो हमने डिस्कस की हैं डिफरेंट प्रोविजंस,
उस सूरत में उनको पेनल्टी हो सकती है अकॉर्डिंग टू लेवल 1। लेवल 1 के मुताबिक जो है वो उनको पेनल्टी जो है वो पे करना पड़ेगी फिर। अब आते हैं सेक्शन 205 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। आज यानी इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट। जो भी डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होते हैं ज़रूरी है कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं वो डिस्क्लोज करें कि उनके क्या इंटरेस्ट है। उसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि कहीं कोई कंपनी के इंटरेस्ट के हवाले से कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए। ये ना हो कि डायरेक्टर अलग से अपना कोई काम कर रहे हो, कंपनी भी उसी नोयत का बिजनेस कर रही है, तो वो जो कंपनी के क्लाइंट्स है वो डायरेक्टर जो है अपनी तरफ जो है वो माइल करें या ले जाए या कोई इस तरह का मामला हो जाए, तो उस सूरत में जो है कंपनी को लॉस हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करें। और जहाँ तक ये बात है कि कंपनी के इंटरेस्टेड कौन से लोग हो सकते हैं, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स जो हैं उनका भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर की अपनी ही कोई और कंपनी भी है, यानी डायरेक्टर एक कंपनी में एज डायरेक्टर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एक और भी कंपनी जो कि उनकी अपनी नहीं है, लेकिन उनके किसी स्पाउस की है, उनके चिल्ड्रन की है या उनके पेरेंट्स की है, तो ये समझा जाएगा इसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है क्योंकि ये डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स की कंपनी है। तो इस सूरत में जो है ज़रूरी है कि डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट को जो है वो डिस्क्लोज करे कंपनी में कि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो यहाँ तक है। और अगर वो जिस हद तक इंटरेस्टेड होंगे वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की जाएंगी। और इस हवाले से जो है जैसा कि यहाँ पे कहा गया सबसेक्शन 3 में, अ जनरल नोटिस गिवन टू द बोर्ड टू द इफेक्ट दैट अ डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और अ मेंबर ऑफ अ स्पेसिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनर of specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement। यानी डायरेक्टर एक कंपनी में तो डायरेक्टर है, हो सकता है वो किसी और कंपनी में मेंबर हो, या हो सकता है वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो, या हो सकता है वो किसी फर्म में पार्टनर हो। तो क्लियर करेगा कि किस हद तक उसका उसमें कंसर्न है या किस हद तक उसका इंटरेस्ट है, या जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है जिस कंपनी में वो फिलहाल डायरेक्टर है, उस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डायरेक्टर उसमें किस हद तक जो है उनका इंटरेस्ट है। ये तमाम चीज़ें डिस्क्लोज करना डायरेक्टर के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और अगर वो नहीं करते डिस्क्लोज तो उस सूरत में उनको जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ सकती है, और उनकी जो पेनल्टी होगी दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू लेवल 1। तो लेवल 1 के मुताबिक जो है वो उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगी अगर वो जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते कि उनका किसी कंपनी में किसी फर्म में क्या इंटरेस्ट है, या उनके किसी रिलेटिव का, ज़रूरी नहीं कि उनका अपना इंटरेस्ट हो, या उनके किसी रिलेटिव का किसी और कंपनी के साथ जो है वो क्या इंटरेस्ट है। जब तक वो क्लियर नहीं करते उस वक़्त तक जो है वो उनको जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ सकती है उसके कंट्रावेंशन के सूरत में। सेक्शन 206 जो है वो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स से मुतल्लिक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस सूरत में एक अप्रूव कर सकते हैं कोई भी पॉलिसी जिसमें वो ये क्लियर करें कि अगर किसी डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है उस सूरत में जो है वो कंपनी कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट बात सब सेक्शन 3 में कही गई वो ये कि ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं मामला। हमने जो बात की डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट की डिस्क्लोज करना ज़रूरी है अगर वो पब्लिक कंपनी है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है, या अगर वो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के साथ या कोई इंश्योरेंस कवरेज है, उस सूरत में भी जो है ये रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये वहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अलबत्ता ये जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर कोई डायरेक्टर कंट्रावीन करता है उन इंस्ट्रक्शंस को, उन रूल्स को जो हमने ऊपर डिस्कस किए, उनको जो पेनल्टी पे करना पड़ सकती है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लेवल 1। तो इस तरह जो है ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने बिज़नेस को, अपने फंक्शन को जो है वो परफॉर्म कर सकेगी।